Hello everyone, welcome back. In today's video, I will be providing the question answers which were left in the last video and some extra questions related to the poem 2.3, that is the Inchcape Rock, and mostly the video is for the appreciation of the poem, that is critical appreciation of the poem the Inchcape Rock by Robert Southey. First we will see the textual question and answers which were not there in the last video. You can just take the screenshot of it. जेलेसी का जैसे आपको क्वेश्चन था कि जेलेसी इज द मोस्ट कुछ तो डिफेक्ट था, तो उसका आंसर आपको लिखना था जस्टिफाई। तो उसका आंसर है जेलेसी इज वन वीकनेस ऑफ अ पर्सन हु ब्रिंग्स हिज और हर ओन डूम by thinking ill about others. The person loses control of his own self and does things to destroy somebody, which in turn causes his own downfall. It is incurable because a jealous mind is always occupied with evil intentions of causing damage to others. So it becomes difficult to make the person understand and change his motive. बेस्ट क्वेश्चन आपकी जो सेल्फ रिस्पॉन्स में आ सकता है, अगर पोएम से अगर आएगा तो फिर ये मेरे ख्याल से ये बेस्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए जेलेसी के ऊपर, तो आप इसको अच्छे से रेफर कर सकते हो। फिफ्थ वाला है द जो सीजन उन लोग का मतलब हमें डिस्क्राइब करने का सीजन कैसा था शुरुआत में पोएम की, तो कैसा था। द सीजन ऑफ स्प्रिंग मेड एवरीवन फील हैप्पी एंड लाइट हार्टेड। द रोवर मतलब राल्फ द रोवर वॉज विस्लिंग एंड सिंगिंग बट हिज जॉयफुल मूड वॉज ड्यू टू अ विकेड प्लान ही हैड जस्ट डिवाइस, जो प्लान उसने किया था बेल को काटने का। द रोवर वॉज जेलस of the abbot who was blessed by the grateful sailors. He wanted to trouble the abbot of Aberbrothock. तो ये था शुरुआत का सीनरी हमारे पोएम का। पेज नंबर 109 A6 second question. The poem begins in the spring season. The entire nature was filled with happiness. The happy mood of the rover turned him to a wicked man who wanted to destroy the peace of the abbot of Aberbrothock. After undoing the abbot's good work, the rover went away on his criminal voyages. But when he was returning, the sea was stormy. The mood was of confusion and fear. The sailor wanted some cue to help them know their location. When the ship struck the rock, the rover yelled and cursed himself for cutting the bell. The closing line talks about the death and destruction. So the change of the mood of the poem indicates that the evil intention of a person can disturb the smooth movement of life. ये भी आपका हो सकता है कोई सेल्फ रिस्पॉन्स। ओके, तो पहले अभी हम देख लेते हैं ये पोएम का जो है हमारा क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम द इंचकेप रॉक बाय रॉबर्ट साउथ है। बहुत अच्छे से आपको इसके अंदर प्रोवाइड किया गया रेफरेंस गाइड्स और रेफरेंस बुक्स और गाइड से, तो अच्छे ही ये स्पेशली मॉडरेटर्स के उससे लिखा गया है। तो अगर आप लिखोगे तो आपको मैक्सिमम 4 में से आपको 3 मिल ही सकता है, उससे नीचे नहीं मिलेगा। बाकी आपको चैलेंज है कि आप कोई सी भी रेफरेंस बुक में ऐसा डिट्टो पूरा आप ऐसा बता सकते हो कि हाँ भाई हमने ये रेफरेंस बुक में आपने जो वो दिया है अप्रिसिएशन वो बुक में था। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमारे मॉडरेटर ने स्पेशली लिख के दिया है, मेरे टीचर एक थे। तो और ये अगर आप लिखोगे तो इसके अंदर लैंग्वेज भी ईजी है, सिंपल है, वर्ड्स भी बहुत ईजी और अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। द इंचकेप रॉक is a ballad written by the English poet Robert Southey. Robert Southey was a famous English poet of the Romantic school and poet laureate from 1813 till his death. Robert Southey was a prolific letter writer, literary scholar, essay writer, historian, and biographer. The Inchcape Rock was published in 1802. It was included in the third volume of Southey's The Poetical Works of Robert Southey. The poem tells the story of the abbot of Aberbrothock who placed a bell on the Inchcape Rock to warn the seamen about the impending danger during storms and gales in 1300s. But the bell was removed by Ralph Rover, the pirate, and some time later his own ship hit the rock when caught in bad weather on his way back to Scotland. टाइटल पे आ जाते हैं। द टाइटल द इंचकेप रॉक इज एन अप्रोप्रिएट वन एज द पोएम इज बेस्ड ऑन द folk tale that tells us about the warning bell on the Inchcape Rock, a notorious sandstone reef about 11 miles 18 kilometers off the east coast of Scotland. बेसिक थीम पे आ जाते हैं पोएम का। The basic theme of the poem is that those who do bad things will ultimately be punished accordingly. It begins by describing how the abbot of Aberbrothock installed a warning bell attached to a bayou on the Inchcape Rock. The bell rang when the rock was underwater and the bayou was floating. The bell was cut down by a pirate named Ralph Rover and dropped into the sea. He did it for he was jealous of the abbot, as people blessed him and thanked him for saving them from danger. This is understood from the line where Ralph says,
The next who comes to the rock won't bless the abbot of Aberbrothok. But some time later, Ralph's vessel encounters the harsh weather and crashed against the rock on his way back to Scotland. As the ship began to sink, Ralph heard the bell ringing. He felt that the devil was ringing the bell and telling him that he was praying for his own wrong deeds. सो द पोएम टीचर्स आर द थीम ऑफ क्राइम एंड पनिशमेंट। मतलब ये अभी अगर आप ये पैराग्राफ अगर अच्छे से एग्जाम में लिख दोगे तो टीचर को समझ में आ जाए कि हाँ भाई बच्चे को पोएम बहुत अच्छे से आई है समझ में और बच्चे ने अच्छे से लिखा है। वरना आप रेफरेंस बुक में जाओगे तो या तो इससे छोटा ही रहेगा और वो भी बहुत हार्ड वर्ड्स रहेंगे तो टीचर पहले देख के समझ जाते हैं भाई 12th का बच्चा और इतने बड़े बड़े वर्ड्स कैसे लिख सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको भले थोड़ा अगर बड़ा होगा लेकिन आपको ईजी लैंग्वेज में दिया तो अगर ये पढ़ेगी टीचर का दिल 100% खुश हो जाएगा और आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो जो बेसिक थीम हमारी पोएम की वो ये है कि मतलब जो था हमारा एबॉट ऑफ एबरब्रोथक, मैंने इसका पहले भी पूरा अच्छे डिटेल एक्सप्लेनेशन पिछले वीडियो की लेक्चर की शुरुआत में दिया था। अभी वापस से देता हूँ क्योंकि ये आ चुका है। तो जो एबॉट ऑफ एबरब्रोथक था उसने जो हमारी इंचकेप बेल थी उसको इंचकेप बेल थी हमारी जो बेल थी उसको इंचकेप रॉक पर बांध दिया था ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पर रॉक है, वो अपना डायरेक्शन बदल के अपनी जान को बचा सकते हैं। लेकिन क्योंकि लिए लोगों ने उसको अच्छे से किया, अब जैसे आप भी देखते रहोगे कोई किसी की तारीफ करता है तो लोगों से देखा नहीं जाता। तो वैसे ही एक था हमारा कैप्टन राल्फ रोवर, उसको बुरा लगा कि मतलब लोग उसको कर रहे इतना वो करे, तो उसने क्या किया वो बेल को काट दिया। लेकिन कुछ टाइम बाद ही उसी की शिप वहाँ से आ रही थी स्कॉटलैंड से वापस वही रास्ते से, और वहाँ का क्योंकि ऊपर का जो वहाँ का एटमॉस्फेयर था वहाँ पे बहुत डार्क था तो लोगों को डायरेक्शन नहीं पता चलता था कि किस डायरेक्शन में शिप को मोड़ने का। तो उसकी शिप ही इंचकेप रॉक पर आ जाती है क्योंकि बेल नहीं थी तो उसको पता नहीं था कि किस डायरेक्शन में जाने का है। तो उसकी वजह से उसकी शिप डूबने लगती है क्योंकि वो प्लान उसी ने बनाया था और उसी ने काट दिया था। तो इसे जैसे ही उसकी शिप डूबने लगती है तो उसको पता चल जाता है कि मैं मेरे बुरे कर्मों की सजा ही पा रहा हूँ। तो ऐसे उसकी शिप डूब जाती है और वो जो बेल थी वो भी डूब जाती है उसके अंदर अच्छे से। तो ये था तो पोएम से जो पोएम हमको सिखाती है मॉरल, उसका मतलब है थीम ऑफ क्राइम एंड पनिशमेंट। मतलब जैसा आप करोगे वैसे आपको पनिशमेंट मिलेगी। अब जरा थोड़ा राइटिंग स्टाइल पे आ जाती पोएम का। द इंचकेप रॉक इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ballad that has adventure, heroism, jealousy, and a moral. The poet has used narrative techniques to augment the effect of the poem. It has got a proper beginning describing the calmness of the sea, introduction of the abbot who tied the bell, Ralph, the pirate who cut the bell, and the destruction of Ralph for his misdeed. The poem consists of 17 quatrains written in rhyming couplets. The poet used the rhyme scheme A to give it a lyrical quality. He has used the verbal image of the calm sea and a number of visual images of the sun and the waves. The sound images of the screaming of birds and the drowning of bell have been used very effectively. Most of the figures of speech used in the poem are sound related like onomatopoeia, alliteration, and repetition. The other figures of speech used are metaphor, simile, personification, inversion, apostrophe, and transferred epithet. ये जितने भी फिगर्स ऑफ स्पीच यहाँ पे हमने मेंशन किए ये मैंने पिछले वाली वीडियो में अच्छा खासा बता दिया था। ये लोग का एग्जाम्पल कौन से टाइप का फिगर ऑफ स्पीच है और उसका एक्सप्लेनेशन पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको वहाँ अच्छे से पूरा प्रोवाइड कर दिया था। तो अगर आपने चेक नहीं किया तो उसको जाके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट, दो द पोएम इज रिटन in easy language, the poet has used many old English words like blessed, quoth, and conceit. The poem is a didactic one where the readers are given a clear image. Like many of the Southeast ballads, the Inchcape Rock also describes a supernatural event. The line, Devil below was ringing the knell, is an example of this. नेक्स्ट पे आ जाते हैं पोएम के ऊपर। द पोएम टीचेज अस अ मॉरल लेसन एज यू सो सो शैल यू रीप। इट इज अ पोएम विच क्वेश्चंस द रीडर अबाउट द आयरनी ऑफ लाइफ एज राल्फ सफर्ड द सेम फेट ऑफ व्हाट ही हैड डन टू डिस्ट्रॉय अदर्स। द स्टोरी, अब जो आपको क्यों पसंद है पोएम, द स्टोरी नरेटेड इन द पोएम टुक प्लेस इन द 14th century एंड द पोएम वॉज रिटन इन द 18th century, 4 सेंचुरी के गैप पर, बट द मैसेज इन द पोएम इज स्टिल एप्लीकेबल इवन द प्रेजेंट सेंचुरी। सॉरी यहाँ पे होएगा द स्टोरी नरेटेड इन द पोएम टुक प्लेस इन द 14th century एंड द पोएम वॉज रिटन इन द 18th century, but the message in the poem is applicable even in the present century. The readers get the basic lesson in life that nature sooner or later pays for all your wrong deeds. तो ये था आपका बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम इंचकेप रॉक। तो आप इसको अच्छे से रेफर कर सकते हो। अब जो थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इसके पोएम के वो हम देख लेते हैं जरा फटाफट एकदम। एक्स्ट्रा क्वेश्चन कंप्लीट द वेब वाले टाइप क्वेश्चन है, ये मैं अपने हर वीडियो में आपको यही बताता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में इन्हीं पे ज़्यादा मार्क्स रहता है क्योंकि अब एक्टिविटी बेस्ड वाला हमारा पेपर पैटर्न है तो उसमें यही सभी आ सकता है। तो मूवमेंट्स ऑफ द वेव्स, वेव्स के मूवमेंट्स कैसे थे, राइजिंग एंड फॉलिंग,
flowed over the Inchcape Rock, moving calmly without any sign of danger. The waves rush in every side. Give reason पे आ जाते हैं. The abbot tied the Inchcape bell. रीजन बताने का आपको क्या मतलब, इसका रीजन ये हो सकता है कि मतलब जो वहाँ पे तो जब वेव्स आती थी तो लोगों को पता नहीं चलता था, तो इसकी वजह से वो लोगों की जान डूब के चली जाती थी. आप इसका स्क्रीनशॉट आप आराम से ले सकते हो बाद में. थोड़ा थोड़ा डिटेल में देते जाता हूँ. सेकंड क्वेश्चन, द सेलर विश टू हियर द इंचकेप बेल. क्यों? क्योंकि वो लोग को डायरेक्शन का पता चले कि किस तरफ वो लॉक है और उसके उल्टे डायरेक्शन में हम जाके अपनी जान बचा सकते, तो इसलिए सेलर्स की ख्वाहिश थी कि उनको वो इंचकेप बेल सुनने मिले. द सेलर्स अप्रिशिएट द एबॉट. क्योंकि उस बेल को एबॉट ऑफ एपोप्रोथक ने बांधा, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई थी और बचते रहती थी जो भी वहां जाता था, तो इसलिए वो लोग उसको अप्रिशिएट, उसकी तारीफ करते थे एबॉट ऑफ एपोप्रोथक की. द पायरेट इज गिवन द टाइटल सर दो ही वॉज अ फियर्ड क्रिमिनल. तो यहाँ पे रीजन ये हो सकता है क्योंकि ये कैप्टन था शिप का जो उसके भी ऊपर आता है, इसलिए पोएम में उसको सर से रेफर किया गया है. ओ क्राइस्ट, इट इज द इंचकेप रॉक, राल्फ एक्सक्लेम्ड. जब वो अपने रास्ते पे वापस आया था, जब उसकी शिप डूबने लगी थी, तब उसको पता चलता है कि भाई ये इंचकेप रॉक है. अगर मैंने बेल नहीं काटा होता तो मेरे को पता चलता है इंचकेप रॉक है, तो मैं अपनी शिप पलटा देता. तो वो अपने बेचारा बहुत एक्सक्लेमेशन से मतलब ये बात बोलता है कि ओ क्राइस्ट, इट इज द इंचकेप रॉक. बी पे आ जाते हैं. कमेंट ऑन द कैरेक्टर ऑफ एबॉट एज यू सी हिम इन द एक्सट्रैक्ट. मतलब अब आपको जो ब्रेन स्टॉर्मिंग के अंदर आपको था कि मतलब क्वालिटीज ऑफ एबॉट ऑफ एबरब्रोथक, वो वहाँ पे आपको टेबुलर में था, यहाँ पे आपको वर्ड्स में दे दिया है. तो आप कर सकते हो कि मतलब दूसरों के लिए प्यार था, उसके लिए अफेक्शन था, इंटेलिजेंट था, हेल्पफुल था, इनोवेटिव था, कंपैशनेट था. तो आप डाल सकते हो उसको सेंटेंस में. आई विल प्लेग यू द एबॉट ऑफ एबरब्रोथक एक्सप्लेन. ये हमारे राज द रोवर ने बोला था क्योंकि उसे उससे जलन हो रही थी. तो यहाँ पे लाइन से कि जो क्या लाइंस इंडिकेट क्या कर रही है आपको. ये क्वेश्चन आप ले सकते हो क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे टाइप के आने के चांसेस रहते हैं 2 मार्क्स के लिए, कि मतलब एक लाइन दी हुई है पोएम को और उसको आपको एक्सप्लेन करने का कि क्या पोएट बोलना चाहता है. थर्ड पे आ जाते हैं. द लेसन लर्न फ्रॉम द एक्शंस ऑफ द गुड एंड द इवल फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट. जो हमने मतलब थीम देखा था अभी एप्रिसिएशन में पोएम का, क्या क्राइम एंड पनिशमेंट. तो अगर कोई अच्छा करेगा तो आपको अच्छा मिलेगा, मतलब जैसे एबॉट ऑफ एबरब्रोथक ने अच्छे काम किया तो इसलिए लोग उसको अप्रिशिएट किया, और राल्फ द रोवर ने बुरे काम किया तो उसकी जान उसी में चली गई. तो वो यहाँ पे आपको डिटेल में दिया हुआ है. Give your opinion on the following line and explain its significance. Quoth Sir Ralph, the next who comes to the rock won't bless the abbot of Aberbrothok. तो अब इसका एक्सप्लेनेशन बार बार यही जाया जा रहा है कि एबॉट ऑफ एबरब्रोथक ने बेल बांधा था, वो लोग उसको ब्लेस कर रहे थे सारी सारी सीमैन सेलर्स, तो इसीलिए उसने शिप काट दिया. शिप का वो मैं क्या बोल रहा हूँ, बार बार रीजन दे रहा, मैं कंफ्यूज होंगे. उसने बेल काट दिया. बेल काटने के बाद उसने यही लाइन सबसे पहले बोला था कि अब अगर कोई भी आएगा इस रॉक के पास तो अब वो उसको दुआएं नहीं देगा जान बचाने के लिए. फिफ्थ पे आ जाते हैं. रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड से व्हाट द सिचुएशन वाज. अब बताने के कि किस टाइम पे ये सिचुएशन हुई थी. फॉर मी थिंग्स वी शुड बी नियर द शोर, नाउ वेयर वी आर आई कैन नॉट टेल. द सेलर्स कुड हियर द वेव्स crashing on the shore. They did not know where they had reached. The situation was that danger was near. बस उन्हें कुछ पता नहीं था कहाँ है, लेकिन उनको इतना पता था कि भाई हम खतरे में आ चुके हैं. अब आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. मैं शुरुआत से रहा हूँ आपको, ये लीजिए. आपको जूम करना तो आप अपनी वीडियो के ना जूम कर सकते हो, क्योंकि अभी जैसे कि आप लोग को अगर पता रहेगा या नहीं भी पता रहेगा तो मैं बता देता हूँ. यूट्यूब का बहुत एक नया अच्छा खासा फीचर आया है. अगर आपका वीडियो प्ले हो रहा है और आप किसी चीज़ को देखना चाहते हो वीडियो के बीच में, तो आप वहीं पे उसको जूम कर सकते हो, तो उतना हिस्सा जूम हो जाएगा अपने आप. तो अगर आपको नहीं दिख रहा रहेगा वर्टिकल में, तो आप जूम करके भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिस पार्ट आपको दिख नहीं रहा होगा. ये बहुत अच्छा अभी यूट्यूब का आया है. वही एक ही चीज़ अगर आप एक बार पोएम समझ जाओगे तो वही एक ही चीज़ बार बार सब आंसर में वही रिपीट हो रही है. मेन आपका यही है कि मतलब एबॉट ऑफ एब्रोथक अच्छा इंसान था, उसने अच्छा काम किया तो इसे लोगों ने प्रेस किया. लेकिन राल्फ लोवर वो भी था अच्छा इंसान, लेकिन उससे मतलब जेलेसी हो गई थी, इसलिए लोग उसको मतलब